Top focus, moderate fog has covered Delhi NCR and other parts of North India. The IMD has predicted dense to very dense fog conditions in the north and northwestern regions of India over the next few days, with visibility taking a big hit. In parts of North India such as Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and East Rajasthan, dense to very dense fog conditions are likely to persist for several hours during the night as well as the early mornings. My colleagues have filed ground reports on the fog and weather conditions across India. Let's have a look. दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश और ओलावृष्टि कई जिलों में देखी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं, यदि बारिश और ओलावृष्टि होती है तो सर्दी का जो कहर है और ज़्यादा देखा जाएगा। तो ऐसे में मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ और गाज़ियाबाद का टेम्परेचर की अगर बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस फ़िलहाल का दर्ज किया जा रहा है। तस्वीरें भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से जो आज की तस्वीरें दिख रही हैं। गाज़ियाबाद की NH9 पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो कोहरे से लोगों को राहत आज ज़रूर मिल गई है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं आसपास में जो बनी हुई हैं वो आज थोड़ा साफ दिख रही हैं, पर सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। यही वजह है कि लगातार सर्दी का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग आते जाते आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये ही वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयां करती हैं कि सर्दी कितनी है। भैया कितनी ठंड लग रही है? मैं देख रहा हूँ आप अपने आप को कवर कर ठंडी बहुत कर रहा है सर। हवा चल रहा है ना सर। कैसे बचाव करेंगे? कैसे करेंगे? आग नहीं जलाने दे रहा है सर। आग नहीं जलाने दे रहे कंपनी। आप क्या कहेंगे? बहुत ठंडी कर रहा है। हाँ देख रहा हूँ पूरा कवर किया हुआ है आपने। हाँ पूरा तो कवर किया हुआ है। बचना भी तो पड़ेगा ठंडी से ना। तो आप समझ सकते हैं लोग जो है अपने आप को अच्छे से कवर कर कर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का जो कहर है वो लगातार जारी है, जो आम लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में रेल यातायात की बात की जाए तो दर्जनों ट्रेन जो है कोहरे के चलते जो है उनको डिले किया जा रहा है। कई कैंसिल कर दी गई हैं, जो कई ट्रेनें कई घंटों से लेट चल रही हैं। हालांकि गाज़ियाबाद में राहत है, पर उत्तर भारत में कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोहरे का जो कोहराम है वो लगातार जारी है। पर जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वक्त और क्रिटिकल रह सकते हैं, तो आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो सजग हो जाइए और अपना विशेष ध्यान रखिए। अपना आप को प्रॉपर ढक कर निकलिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में और ज़्यादा सर्दी अपना कहर बरपाएगी। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। Another day, another foggy conditions that is prevailing in the national capital. But right now the fog conditions are not that persistent how it was 2 days back. The situation is still better. You see the visuals of India Gate, you can actually understand that what 2 days back it was, it's not that anymore. But yes, however, IMD has given a cold alert, a cold alert to the national capital. But yes, the situation is still far better than how it was 2 days back. Now, if we show you the visuals, amidst this cold weather, amidst this gripping cold, you can see that Republic Day preparations are going on at full swing, and you can see their courage, their zeal to participate in this, to partake in this challenging yet tired times that they are doing their preparations at full swing. They are committed. You see their commitment towards enhancing, and see that the group of cadets are working towards making this Republic Day a grand event. So yes, a beautiful visual that you can see where these cadets are working to make themselves better. And if we tell you that right now 2,274 cadets are to take part in this in NCC Republic Day camp, with largest participation of 907 women. So yes, it's a amazing time. You can see the visuals, you can see how gorgeous this entire visual looks, and how committed they all are, how committed all of them are in this gripping cold where the temperature is 7 degrees, the temperature is 7 to 9 degrees.
degrees, and in this gripping cold weather also they are partaking in this event to make sure in their dress rehearsal to make sure that this event is grand in its own nature. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Avdesh for NewsX Delhi. सर्दी लगातार अपना सितम ढा रही है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में कोहरे की चादर से जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें सुबह और शाम के तापमान में कमी के चलते जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें मौसम जानकारों ने साफ किया कि आने वाले दिन फिलहाल राहत भरे नहीं होंगे। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि जो कोहरे की चादर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है क्योंकि इस कोहरे के चलते गाड़ियों की लाइटें जलाकर लोग धीमी रफ्तार से गाड़ियों चलाने को मजबूर है। और जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं उन्होंने गर्म कपड़ों का सहारा लिया है, अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक रखा है। और जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो चाय का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सड़कों पर जो आमतौर पर भीड़ होती थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। वजह है जिस तरीके सर्दी लगातार अपना सितम ढा रही है और जिस तरीके से कोहरे की चादर हर तरफ नजर आती है, ऐसे में लोगों को सर्दी का सामना करना उनकी मजबूरी है। हालांकि लखनऊ में जो 8वीं तक के स्कूल है उनकी फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। वहीं माध्यमिक के जो स्कूल है उनके समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 10 बजे से वो स्कूलों का समय कर दिया गया है। जिनका बेहद जरूरी हो रहा है घरों से निकलना वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो गर्म कपड़ों से ढके हुए नजर आ रहे हैं। और चाय की दुकानों पर जरूर भीड़ नजर आ रही है। हालांकि मौसम के साफ किया है कि आने वाले दिन फिलहाल राहत भरे नहीं होंगे। हालांकि जिस तरीके से लखनऊ समेत कुछ जिलों में कल बूंदाबांदी हुई थी उससे सर्दी थोड़ी सी और बढ़ी थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज फिलहाल मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। बूंदाबांदी के आसार तो नहीं है, लेकिन कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। सर्दी जो लगातार बनी हुई है और शीतलहर के चलते लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। तो मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो ठंड से जो भी बचाव के उपाय हैं वो करते रहें, अपने आप को गर्म कपड़ों से ढकते रहें और समय समय पर चाय का सेवन करते रहें ताकि सर्दी की सितम से बच सके। बच्चे और बूढ़ों को साफ तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि सर्दी से वो बीमार हो सकते हैं, तो ऐसे में वो अपना ख्याल रखें। फिलहाल मौसम जानकारों ने जरूर साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत कुछ और जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं, तो ऐसे में सर्दी का सितम है आने वाले दिनों में यूं ही देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मौसम जानकारों ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। सहयोगी कफील के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.